آج ایک نئے کورس کا ہم آغاز کر رہے ہیں جو نیو ٹیسٹامنٹ سروے کے نام سے ہے۔ سلیمان کدھر گیا؟ سلیمان ادھر لکھ دیں ذرا۔ نیو ٹیسٹامنٹ سروے سبجیکٹ جسے اردو میں ہم کہیں گے نئے عہد نامے کا جائزہ۔ کیا ہے؟ نئے عہد نامے کا جائزہ۔ اوکے، اس کورس میں ہم نئے عہد کے تعلق سے اس کے پس منظر کے بارے میں جانیں گے، سیکھیں گے، اور اس کے جو تمام نوٹس ہوں گے یہ آپ کو ویب سائٹ پر ملتے رہیں گے۔ جیسے جیسے ہم کلاسز پڑھیں گے یہ سارے نوٹس آپ کو ویب سائٹ پر اویلیبل دستیاب ملیں گے، سو آپ کو وریڈ ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ تو کہ جو کچھ بھی پڑھایا جائے گا اس کو ہم سرسری جائزہ یا کہہ لیں کہ بہت ایک معمولی سی نگاہ ڈالیں گے، اور اس کی وساطت سے مدد یہ آپ کی ہوتی ہے کہ آپ ان پوائنٹس کو لے کر ان پہ خود ریسرچ کر کے آپ اور مزید جو ان کی ڈیٹیلز ہیں ان کو جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ یہ سکھانے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود ایفرٹ کریں، محنت کریں، تاکہ انہیں نیو ٹیسٹامنٹ کے بارے میں مکمل واقفیت ہو سکے۔ تمام کتابوں کے بارے میں، ان کی تاریخ تصنیف کے بارے میں، مصنفین کے بارے میں، یہ سب کچھ ہم جانیں گے، سیکھیں گے۔ پھر جہاں تک ہو سکا، پاسبل ہوا، ممکن ہوا، ہم ان کے پس منظر کو بھی جانتے رہیں گے، بیک گراؤنڈ کو بھی جانیں گے، کون سی کتاب کب لکھی گئی، کن کو لکھی گئی، لکھنے والا کون ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم جانیں گے، سیکھیں گے۔ اس کے لیے میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ ضرور آپ ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں۔ اس کے لیے ہم ایک مڈ ٹرم لیں گے، اور اسی طرح سے ایک ہم اس کا جو ہے وہ فائنل ایگزام لیں گے۔ ان تمام چیزوں کے لیے بھی آپ سب تیار رہیں، اور اپنی جو اٹینڈنس ہے اس کو بڑی پابندی کے ساتھ لگاتے رہیں۔ اور خاص طور پہ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کورس جو ہے یہ تمام کلاسز کے لیے، یعنی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، سب اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھنا از حد ضروری ہے، چونکہ یہ کسی ایک دن میں نہیں پڑھیں گے۔ اگر ٹیوزڈے کو جیسے آج طارق وارث صاحب نہیں ہیں تو آج ہم زیادہ ٹائم پڑھ سکیں گے، اسی طرح سے کل کے دن میں صرف لیاقت صاحب ہیں اور باقی ٹائم میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ہمیں ٹائم ملتا رہے گا ٹیوزڈے میں یا وینسڈے میں، تو اس کے لیے کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ٹیوزڈے کا ہے اور یہ صرف فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ہے، یہ وینسڈے کو پڑھایا جانا ہے۔ یہ دونوں دنوں میں کسی بھی اوقات میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ سب اس کے لیے مینٹلی پلیز تیار رہیں۔ اس سے پہلے کہ نیو ٹیسٹامنٹ کو سمجھا جائے یا جو نیا عہد ہے اس کو سمجھا جائے کہ نیا عہد نامہ کب لکھا گیا ہے یا اس کے تعلق سے کیا ہمارے پاس انفارمیشن ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو اس پرانے اور نئے عہد کا جو درمیانی حصہ ہے ہم ضرور اس پر بھی ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں گے، سرسری جائزہ لیں گے۔ ڈیٹیل تو نہیں ہم جان سکتے کیونکہ ہم کچھ حکومتوں کا ذکر کریں گے، کچھ ادوار کا ذکر کریں گے۔ یہ حکومتیں کس کی گری، کس کی بنی، اتنی ڈیٹیل تو نہیں، لیکن کم از کم ہم جو ان حکومتوں کے نام ہیں ان کو ضرور جانیں گے کہ اس دور میں کون سی حکومت، اور صرف یہ پرانے عہد کے اختتام سے لے کے نیو ٹیسٹامنٹ کے آغاز تک کا تھوڑا سا پس منظر یا بیک گراؤنڈ یا ہسٹری ہم جانیں گے، سیکھیں گے۔ اور یہ چیزیں اس لیے جانیں گے کیونکہ یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں گی نیو ٹیسٹامنٹ کو سمجھنے کے لیے، اور مددگار ہوں گی نیو ٹیسٹامنٹ کو جاننے کے لیے، نئے عہد نامے کو سمجھنے کے لیے۔ نئے عہد نامے کو سمجھنے کے لیے جو یہ درمیانی دور ہے، پرانے عہد کی جو ہمارے پاس ڈیٹیل ہے یا تفصیل ہے، اس کے مطابق کون سی کتاب آخری کتاب ہے؟ ملاکی نبی کا صحیفہ۔ بزرگ
मलाकी नबी के सहीफे से लेकर मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के दौर तक ये 400 साल का पीरियड है। कितने सालों का है? 400 सालों का पीरियड है। इसे हम साइलेंस पीरियड भी कहते हैं, खामोशी का दौर भी कहते हैं। साइलेंस पीरियड या खामोशी का दौर, इसे इंटरटेस्टामेंटल पीरियड भी कहा जाता है। मैं जरा आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। इंटरटेस्टामेंटल पीरियड, इसके लिए उर्दू जुबान में ये वर्ड भी मौजूद है, दौर बैनुल अहदीन। ये इंटरटेस्टामेंटल जो पीरियड है, इसके लिए उर्दू जुबान में ये अल्फाज मौजूद हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब जो पुराना अहद जहां इख्तिताम होता है, जैसे मलाकी नबी के सहीफे पर, तो उससे लेकर मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी तक, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी को भी दरअसल पुराने अहद का ही नबी कहा जाता है, क्योंकि जो नए अहद का आगाज है वो किससे होता है? खुदाबंद यीशु मसीह से। इसे भी चूंकि ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट ही कहा जाता है, लेकिन इनके माबैन एक बहुत बड़ा गैप है जो 400 साल का मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। अब हैरानी की बात यह है कि आपको मलाकी नबी के सहीफे तक इब्रानी जुबान ज़दाम लगती है, या लोगों की जो कॉमन लैंग्वेज है वो इब्रानी जुबान नजर आती है। लेकिन जैसे ही हम इंटरटेस्टामेंटल पीरियड में से गुजरकर न्यू टेस्टामेंट तक या नए अहद तक आते हैं, तो अब लोगों की जो लैंग्वेज है, जुबान है, या इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जुबान जो है वो कौन सी हो चुकी है? यूनानी जुबान। कौन सी? यूनानी जुबान। यहां आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखते हैं कि पहले कौन सी जुबान है? इब्रानी। और आहिस्ता आहिस्ता 400 साल की एक तारीख जो गुजरी है, इसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं कि अब जो लोगों की जुबान है वो कौन सी है? यूनानी जुबान है। जो इंटरनेशनली या बैनुल अक़वामी जुबान राइज थी जब खुदावंद यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे, तो उस वक्त यूनानी जुबान राइज थी। ये हमारे अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करती है और इस बात को समझे कि दिलचस्प बना देती है कि ये कैसे हुआ कि पहले एक जुबान और लोगों के लिए आम फहम है, लेकिन आज तकरीबन कुछ 400 सालों के बाद एक बड़ी तब्दीली आई है और जुबान भी तब्दील हो गई है। इसके लिए हमें कुछ जो बैकग्राउंड में, पस मंजर में जो हिस्टोरिकल ऐसे इवेंट्स हैं, इनको जानना सीखना जरूरी होगा, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि ये बड़ा डिफरेंस या फर्क कैसे आया और किस तरह से जो लोग हैं वो इस इर्तकाई मराहिल में से गुजरे हैं। नंबर 1 जो इस असना का या इस पीरियड का दौर है, जिसे हम फारसियों का दौर कहते हैं। किसका दौर?
फारसियों का दौर, इसके लिए डेट आप लिख लें 536 से 533 BC। (536 से 333 BC या कबल अज़ मसीह। ये BC और AD का फर्क आप सबको पता है? पता है? बिफोर क्राइस्ट यानी मसीह के आने से पहले का दौर, और AD यानी आफ्टर द डेथ ऑफ द लॉर्ड या क्राइस्ट, तो वो दौर बनता है मसीह के आने के बाद का दौर। ओके, सो फारसी हुकूमत का आगाज जो है वो जैसे हम देख रहे हैं 536 BC से होता है। इस दौर में यहूदी लोगों की हौसला अफजाई की गई कि वो हैकल की तामीर करें, और हैकल की तामीर के लिए फारसी लोगों ने इनको भिजवाया यरूशलेम में कि जाओ और जाकर तो अपनी हैकल को तामीर करो। आपको याद है ये इज़रा नहमिया की किताबों में आप सब पढ़ते भी हैं इस बात को। सो ये दौर जो है दरअसल इज़रा नहमिया की खिदमत का दौर है जब वो खिदमत कर रहे थे। सो ये दौर दरअसल अरतक्षश्ता बादशाह के नाम से जाना जाता है। ओके, रेड से नजर नहीं आता, ठीक है। अरतक्षश्ता बादशाह, सो ये दौर जो है ये इसके नाम से जाना जाता है, और इस दौर के जो वाकयात हैं वो इज़रा नहमिया और एस्तर की किताबों में मिल जाते। इस दौर में हज्जी ज़करिया मलाकी नबी नबूवत कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे। इस दौर में दरअसल जो ज़रुब्बाबिल की क़ियादत में आप सब जानते हैं कि यहूदी लोग जो हैं वो यरूशलेम में आए थे हैकल की तामीर करने के लिए। सो ये दूसरी हैकल है जो तामीर की गई 515 BC में। कब? 515 BC में। बाद में इसको भी तबाह कर दिया गया, गिरा दिया गया, और उसके बाद एक जो थैंक यू तीसरी हैकल है जो किसने तामीर की थी? हेरोदिस बादशाह ने। वेरी गुड। किसने तामीर की थी? हेरोदिस बादशाह ने। और जब ये तामीर हो रही थी तब खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर अपनी जो खिदमत है उसे सर अंजाम दे रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह जब खिदमत कर रहे थे तो उनके 3 या 3.5 साला दौर में कहा जाता है कि ये, बल्कि बाइबल मुकद्दस में, न्यू टेस्टामेंट में इस बात को बयान किया गया है कि ये जो नई हैकल है इसको तामीर करते हुए 46 साल हो गए थे। कितने साल? कितने? 46 साल। और अभी भी ये हैकल तामीर नहीं हुई थी। जब खुदावंद यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे तब हैकल ज़ेरे तामीर थी, तामीर के मराहिल में से गुजर रही थी और मुकम्मल तौर पे तामीर शुदा नहीं थी। अब इस हैकल को जब, जिसका तस्करा भी हमने देखा है, इस हैकल को जो तीसरी हैकल, या बहुत सारे लोग मुत्तफिक हैं कि ये भी दूसरी थी क्योंकि पहली जो है वो भी गिरा, जो दूसरी हैकल बनाई गई थी वो भी गिरा दी गई थी। बहरहाल ये जो तामीर है, जो हेरोदिस की हैकल है, क्योंकि इसके नाम से अब ये पहचानी या जानी जाती थी। सो ये हैकल जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद तक भी तामीर होती रही थी। कहा जाता है कि तकरीबन 60 से 65 साल लग गए इस हैकल को
तामीर होते हुए। सोचें कितनी बड़ी ये हैकल है, क्योंकि इस हैकल का रकबा भी हेरोदिस ने बढ़ा दिया था। जो पहले इसका रकबा था ये तकरीबन 17 एकड़ पर मुहित था, और अब जो हेरोदिस की हैकल है, या हेरोदिस जिस हैकल को तामीर कर रहा था, इस हैकल की का रकबा भी 17 एकड़ से बढ़ाकर तकरीबन 35 एकड़ तक कर दिया गया। सो इस एतबार से ये यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा शाहकार था। यहूदी जब खुदावंद यीशु मसीह अपने मुकद्दस हफ्ते में या लास्ट वीक में, आपको याद है कि यरूशलेम में खिदमत कर रहे थे, तो यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि तू देखता है ये इमारतें, मतलब हैकल की तरफ इशारा करके कहा कि ये कितनी बुलंद तरीन इमारत है या खूबसूरत शाहकार है यहूदियों का। तो तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि यहां पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा। तो ये पेशगोई खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद तकरीबन 70 एडी में, यानी 70 ईस्वी में पूरी हुई, जब जनरल टाइटस ने, किसने? जनरल टाइटस ने क्या किया? इस हैकल पर और यहूदियों पर हमला कर दिया और इस हैकल को आग लगा दी, जला दिया। और एक ही दिन में, ज्यादातर लोग इस बात को बयान करते हैं कि एक ही दिन में तकरीबन 10 लाख यहूदी जो हैं उनको उसने कत्ल कर दिया, या अपनी फौज की रहनुमाई में उनको कत्ल करवा दिया। सो इतना बड़ा नुकसान हुआ उस वक्त यहूदियों का। सो इस एतबार से ये जो हैकल, जहां खुदावंद यीशु मसीह भी जाते, यहूदी भी जाते इबादत के लिए, बल्कि बाद में तज़किरा मिलता है रसूलों का, शागिर्दों का, वो भी जाकर वहां दुआ किया करते, इबादत किया करते, वर्शिप किया करते थे। सो ये हैकल जो है इसका हेरोदिस से ताल्लुक था, क्योंकि हेरोदिस इसे तामीर कर रहा था, बना रहा था। बहरहाल चूंकि यहूदियों के अंदर हैकल के लिए बड़ी तकरीम है और बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट है, आज भी आपको पता है यही लड़ाई है। और तब यहूदियों का यही प्रॉब्लम था कि वो अपनी हैकल के लिए बहुत पोजेसिव थे, बहुत उनको उनसे मोहब्बत है, अकीदत है अपनी हैकल से। सो इस एतबार से अब दूसरा जो दौर है, पहला दौर कौन सा है? फारसी दौर। नंबर 2 यूनानी दौर। यूनानी दौर 333 से लेके 323 बीसी तक है। इस दौर का आगाज सिकंदर आजम से होता है। किससे? सिकंदर आजम से। कितने लोगों ने नाम सुना है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम। इसके बाप का नाम फिलिप था। क्या नाम था? फिलिप था, जो बहुत जीरक और इंतहाई बहादुर सिपह सलार था। इसने, कहा जाता है कि यूनान की जो रियासतें हैं उनको यकजा किया और पूरे यूनान का सरबराह बन गया। सिकंदर आजम की मां की तरबियत का इस पर बहुत गहरा असर था। वो चूंकि बुत परस्त खातून थी और इसी तरह से देवी देवताओं पर ईमान रखती थी, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा तोहम परस्ती करती थी और सुपरस्टिशंस पर बहुत ज्यादा ईमान रखती थी। सो इस एतबार से उसने अपने बेटे को ये सिखा दिया था कि उसके बेटे का जो बाप है वो फिलिप नहीं है, बल्कि ज़्यूस देवता है। कौन है? ज़्यूस देवता, जिसका तज़किरा हम मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ भी सकते हैं। सो ज़्यूस देवता को इसने बताया, क्योंकि इन दिनों में
लोग इस बात पे ईमान रखते थे कि जो देवता हैं वो खवातीन के पास आते हैं और बहुत दफा उनकी वजह से उनके औलाद पैदा होती है। सो इस एतबार से ये समझे कि एक बहुत बड़ा इब्लीस का प्लान था जो उसने लोगों के जहनों में पैदा कर रखा था कि जो देवता हैं ये रात को खवातीन के पास आते हैं और इस तरह से बगैर बाप के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। सो इस एतबार से ये खातून जो हैं इन्होंने अपने बेटे को यानी सिकंदर आजम को ये बता दिया था कि तेरा बाप फिलिप नहीं है बल्कि तेरा बाप कौन है, ज़्यूस देवता है, क्योंकि वो मेरे पास आया था और इसलिए तू पैदा हुआ था। अच्छा, ये प्लान, ये मंसूबा जो था इब्लीस का बहुत देर तक चलता रहा, यहां तक कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी तब भी बहुत सारे जो गैर कौम के लोग थे वो इल्जाम लगाते थे कि जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई है ये भी किसी ऐसे देवता की वजह से हुई है, क्योंकि इब्लीस ने ये लोगों में फैला दी थी बात कि बगैर बाप के पैदाइश हो सकती है और इसमें जो देवता हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इस एतबार से लोग शकूक व शुबहात में इस बात को डालने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे थे। सो चूंकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से तो बहुत सारी पेशगोइयां की गई, उसकी पैदाइश के बाद बहुत सारे ऐसे निशानात नजर आए और आसमान से पैगामात आए। सो इस एतबार से उस पैदाइश को लोगों के लिए एक्सेप्ट करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल न हुआ, क्योंकि आसमानी निशान जो थे वो जाहिर हो रहे थे। बहरहाल अब तक यानी जो यूनानी थे वो बहुत हद तक इन चीजों पर ईमान रखते थे और इन चीजों की तालीम देते थे। अब इसकी मां ने इसको ये चीजें सिखाई और इसके बाप ने इसको, चूंकि वो खुद सिपा सलार था, बड़ा जंगजू था, तो उसने इसको जंगी जो फनून हैं वो सिखा दिए। और इसी तरह से एक तीसरी शख्सियत का भी इसकी जिंदगी पे बड़ा असर था और वो था अफलातून का शागिर्द अरस्तु। अरस्तु का इसकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर था। अरस्तु ने इसे जो तमाम तहजीब व तमद्दन है वो सब कुछ इसे सिखाया। सो जो सिकंदर आजम है, अलेक्जेंडर द ग्रेट है, इस पर 3 शख्सियात का बड़ा असर था। नंबर 1 क्या है? उसकी मां का। नंबर 1 उसकी मां का, नंबर 2 उसके बाप का, नंबर 3 उसके उस्ताद का। सो ये 3 शख्सियात जो हैं वो सिकंदर आजम पर बहुत ज्यादा असर अंदाज हुई और इस लिहाज से जो सिकंदर आजम है वो भी इन तीनों की रहनुमाई में चल रहा था, अपनी मदर और अपने फादर और इसी तरह से अपने उस्ताद के जो कुछ भी सिखाए गए कवानीन थे। अब इसका बाप चूंकि इसको इसके साथ प्यार करता, कीदत रखता था, उसने इसे 20 साल की उम्र में फाइज कर दिया अपनी पोजीशन पर। सो इसकी अभी उम्र 20 साल थी और ये जो सारा यूनान है वो इसके मातहत आ गया। इसने तकरीबन 334 तक तमाम जो फतुहात थी वो मुकम्मल कर ली। सो इसकी फतुहात के ताल्लुक से बड़ी मारूफ बात भी है कि ये दरियाए सिंध तक भी आया था, यहां तक कि बहुत सारे लोग मुत्तफिक हैं कि टेक्सला तक इसकी रसाई हुई और दानियल नबी के सहीफे में भी 8वें बाब में इसका तज़किरा या इसका जिक्र हमें मिल जाता है। इसकी हुकूमत के बहुत गहरे असरात पड़े तारीख पर, जो खुदावंद यीशु मसीह के दौर तक भी नजर आते रहे, या खुदावंद यीशु मसीह जब खिदमत कर रहे थे तो तब भी वो समरात और असरात जो थे वो वाज़े लोग देख सकते थे। मिसाल के तौर पे यूनानी जुबान, इसने यूनानी जुबान को आम करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, मदरसों, हर जगह पे इसने कहा कि हर एक चीज जो है वो यूनानी जुबान में पढ़ाई जाएगी। किस जुबान में? यूनानी जुबान में। यहां तक कि इसने कहा कि जो थिएटर्स हैं और जो लोग मुख्तलिफ ड्रामा करते हैं उन ड्रामों की लैंग्वेज
उन थिएटर्स की लैंग्वेज कौन सी होगी? यूनानी जुबान होगी। इवन के जो सरकारी जुबान है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, या दफ्तरी जो जुबान थी जिसमें लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन करते थे, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन भी इसने कहा कि किस जुबान में की जाएगी? यूनानी जुबान में की जाएगी। सो यूनानी जुबान इस वक्त दुनिया की मरूफ तरीन जुबान बन चुकी थी, इसलिए इस जुबान को बैनुल अक़वामी जुबान होने का दर्जा मिल गया। और कैसी हैरानी की बात है, इसके नकूश इतने परफेक्ट थे और इस कदर नुमाया थे कि इसका दौर खत्म हो गया। अब यीशु मसीह जब आए तो किसकी हुकूमत थी? किन लोगों की हुकूमत थी? रूमियों की हुकूमत थी। देखेंगे यूनानी दौर कब का खत्म हो गया, लेकिन रूमियों के दौर में भी लोग यूनानी जुबानी, या उस वक्त भी लोगों की जो बैनुल अक़वामी जुबान थी वो कौन सी थी? यानी इस कदर इसने अपनी इस लैंग्वेज को और अपने इस तहजीब व तमद्दन को आम करने के लिए एफर्ट की, मेहनत की कि हर जगह जो यूनानी तहजीब है वो नजर आए, यूनानी जुबान जो है वो सुनाई दे। और ये इस मामले में बड़ा सख्त था, ये बर्दाश्त नहीं करता था कि कोई और लैंग्वेज इसके सामने बोली जाए या सुनाई दे। सो इसके दौर के बाद इजिप्शियन पीरियड या मिस्री दौर शुरू होता है। तीन सौ 23 से 204। आप देख रहे हैं तारीख करीब आ रही है, दूर से शुरू हुई है और ये अब करीब आ रही है, यानी 204 तक आ गई है। यानी ये खुदावंद यीशु मसीह से पहले हमने इसका जो आगाज किया है वो 536 कबल अज मसीह से 333 करीब आ गई डेट, फिर 333 से 323 और करीब आ गए, फिर 323 से 204 और हम करीब आ गए हैं खुदावंद यीशु मसीह के दौर के। सो ये दौर जो है, ये जो मिस्रियों का दौर है या इजिप्शियन पीरियड इसे कहा जाता है, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दौर नहीं है, लेकिन ये दौर जो है यहूदियों के लिए इनका बड़ा एक जो इजिप्शियन पीरियड था वो इंतहाई इनके लिए नरम समझा जाता है, या कहा जाता है कि इस दौर में इन पर कोई बहुत ज्यादा सख्तियां ना हुई। इनके साथ जो हुक्मरान थे या जो यहाँ के दीगर लोग थे वो बड़े रहम से पेश आते थे, मोहब्बत और अकीदत से पेश आते थे। और कहा जाता है कि जो सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन है वो भी इसी दौर में हुई थी। सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन के बारे में आपने, जब मैंने बिब्लियोलॉजी आपको सब्जेक्ट पढ़ाया था तो तब हमने पढ़ा था सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन के बारे में। कितने लोगों को याद है? ओके, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोग? सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन, सेप्टुअजिंट का मतलब क्या हमने बताया था, सीखा था? हफ्तादी, यानी 70 लोगों ने जो मिलकर ट्रांसलेशन की थी ओल्ड टेस्टामेंट की। सो जो चूंकि आप देखें कि न्यू टेस्टामेंट तो यहां मौजूद नहीं है, तो वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह से कोई 204 साल पहले की बात की जा रही है। सो तब तो ना न्यू टेस्टामेंट है, ना न्यू टेस्टामेंट की टीचिंग्स है, ना खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे इस वक्त अपनी जिस्मानी हालत में मौजूद हैं। सो इस एतबार से सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन के लिए कहा जाता है कि ये चूंकि इनके लिए आसान दौर था तो तब इनके लिए सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन जो है ये
की गई थी। सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन यानी इब्रानी जुबान का, इब्रानी बाइबल का तर्जुमा किस जुबान में किया गया था? यूनानी। जैसे हमने सीखा है कि अब चूंकि कौन सी लैंग्वेज लोगों के लिए आम फहम बन चुकी थी? यूनानी जुबान। और यूनानी जुबान चूंकि आम फहम है, इसलिए लोगों के लिए इब्रानी जुबान समझना आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो चुका था। सो इसलिए इसमें इसकी ट्रांसलेशन की गई, तर्जुमा किया गया, ताकि लोग बाआसानी खुदा के कलाम को समझ सकें। आमीन। ओके, इसके बाद एक और दौर शुरू होता है जिसे हम असूरी दौर कहते हैं। यह 204 से लेकर 165 बीसी तक है। दो सौ चार से 165 बीसी तक ये, या कबल अज़ मसीह तक असूरी दौर रहा है। ये दौर जो है ये यहूदियों के लिए इंतहाई सख्त दौर गुजरा है। असूरी लोग यहूदियों से बहुत नफरत करते थे, हेट करते थे उससे, उन लोगों यानी यहूदियों से। इन्होंने, असूरियों ने यरूशलेम का नाम तब्दील करके एंटियोक नाम रख दिया। असूरी दौर में यरूशलेम शहर का नाम तब्दील करके क्या नाम रख दिया? एंटियोक नाम रख दिया गया। और असूरी बादशाह एंटियोकस ने अपने आप को खुदा के तौर पे पेश किया। कैसे? गॉड यानी खुदा। और इसने क्या किया? तमाम जो यहूदी कुर्बानियां हैं उनको मनसूख कर दिया, यहूदी कुर्बानियों को मनसूख कर दिया। उनकी तमाम जो रिचुअल्स हैं उनको इसने खत्म करा दिया। और इसी तरह से इसने एक और बहुत भयानक काम किया कि इसके दौर में हैकल में सूअर की कुर्बानी गुजरान दी गई। किसकी? सूअर की। इसने यानी इस दौर में, असूरी दौर में, हैकल को क्या कर दिया गया? नापाक कर दिया गया। क्या किया गया? नापाक कर दिया गया। सो यहां तक एक दौर है। और उसके बाद मकाबियों का दौर, या कह लें कि यहूदी रेस्टोरेशन का दौर है, वो भी बहुत लिमिटेड है, मुख्तसर सा है। इसे हम कहते हैं नेक्स्ट जो पीरियड है, आज पैगाम कितने हैं? 4। तो वीडियो भी आई हुई है जाहिद साहब की। ओ अच्छा, 4 लोग हैं। ओके। एक 165 से 63 बीसी तक मकाबी दौर। मकाबी दौर की इंपॉर्टेंस, अहमियत यह है कि इस दौर में एक मततिया मकाबी के नाम से काहिन ने, इस यानी जिसके जरिए से असूरी दौर में, चूंकि वो भी एक काहिन था, एक काहिन, वो यहूदी कहते हैं कि बड़ा गद्दार था, जिसने असूरी दौर में यहां पे आके सूअर की कुर्बानी चढ़ाई थी। इसने क्या किया? ये जो मततिया मकाबी है, इसने उस काहिन को कत्ल कर दिया और अपने साथ तकरीबन 10,000 यहूदियों को मिलाकर
تو اس نے فوج بنا کر ہیکل کی تقدیس کی یا اسے صاف کیا، پاک کیا. اس دن کی یاد میں یا اس تقدیس کی پاداش میں یہودی آج ایک عید سیلیبریٹ کرتے ہیں یا مناتے ہیں جسے عید تجدید کا نام دیا جاتا ہے. بائبل مقدس میں بھی آپ نے پڑھا ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ میں اس کا تذکرہ ہے، اور ویسے بھی آپ اگر انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں تو آج بھی اس عید کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہودیوں کی جانب سے. اور خداوند یسوع مسیح کے دور میں بھی لوگ اس عید کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. خداوند یسوع مسیح جب مقدس ہفتے کے آغاز میں اتوار والے دن جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے ہیں تو تب بھی لوگوں کو جو غلط فہمی ہوئی تھی وہ سمجھے تھے کہ جیسے مکابی آئے تھے اور انہوں نے ہماری ہیکل کی تقدیس کی تھی، ہیکل کو پاک کیا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی ابھی ریسنٹلی یہ کام کیا تھا کہ ہیکل میں سے تمام ان کاروبار کرنے والوں کو اور دیگر لوگوں کو نکال دیا تھا، تو وہ سمجھے تھے کہ یہ جو مکابی دور ہے اس جیسا دور جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے اور ہمیں ریسٹور کیا جائے گا، بحال کیا جائے گا. اس لیے جیسے انہوں نے متتیہ مکابی کے لیے کھجور کی ٹہنیاں لہرا کر اس کو ویلکم کیا تھا، خوش آمدید کیا تھا، اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کو بھی ان لوگوں نے اس کاہن یا مکابی دور کی یاد میں یہ ٹہنیاں لہرا کر ویلکم کیا کہ پاسبلٹی ہے یا ممکن ہے کہ وہ دور پھر سے ہمارے لیے شروع ہو جائے. ہاں جی، سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ آ رہی ہے. ویری گڈ، شاباش، بڑی انٹیلیجنٹ کلاس ہے ہماری. اور آن لائن جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ بھی کامنٹ میں بتا سکتے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اوکے. چلیں، ضرور کسی وقت اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم صرف سائلنس پیریڈ کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں بھی جو میں بتا رہا ہوں اس کی آپ بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا سکتے ہیں. ہر ایک پیریڈ کو آپ لکھ کر کسی بھی جگہ سے سرچ کریں جو آپ کے پاس سرچنگ انجن ہو، پوائنٹس ہوں جہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اس دور کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے. تو جیسے میں صرف دور کا نام لکھ رہا ہوں یا کچھ چیزوں کا تذکرہ، جیسے الیگزینڈر دی گریٹ ہے، تو اس کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں. بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن چونکہ ہم تو ایک سرسری جائزہ لے رہے ہیں اور صرف آپ کو آگہی دے رہے ہیں. سو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا سیکھنے کا کہ جو نام ہم لے رہے ہیں ان کو ضرور آپ مزید اس کو کھنگالیں، دیکھیں، ریسرچ کریں، ڈیٹیل جانیں یہ دور کہاں سے کہاں تک ہے، اس میں اور کیا کیا کام ہوئے، اور کیا کیا اس میں جو ریفارمز ہیں وہ لائے گئے. سو اس اعتبار سے آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں. اوکے. اس کے بعد ایک اور جو دور جو خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران بھی رائج رہا، اسے ہم رومن یا رومی دور کہتے ہیں. یعنی خداوند یسوع مسیح کے 63 سال پہلے یہ دور شروع ہو گیا تھا جو رومی حکومت کا دور ہے. رومی حکومت کا جو آغاز ہوا ہے، انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ اس دور کا آغاز کیا ہے. انہوں نے اب چونکہ جب اسکندر اعظم کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی جو سلطنت تھی وہ بٹ گئی، مختلف اس کے جو ساتھی تھے ان میں بانٹ دی گئی اور اس کے خاندان میں کافی اختلافات تھے. سو اس اعتبار سے اب جو اس طرح کی مستحکم حکومت نہیں تھی کسی کی بھی، اس لیے رومیوں کو
یہ ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ ایک لوپ ہول مل گیا یا ایک آسان راستہ مل گیا جہاں سے انہوں نے حکومت پر قبضہ جمانے کے لیے آہستہ آہستہ کوشش جو ہے یہ شروع کر دی. اور انہوں نے کوئی بہت بڑے پیمانے پہ ایفرٹ نہیں کیا, کوشش نہیں کی, انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو دیہات ہیں ان پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا اور ان کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا. پھر تقریباً 63 BC میں جو ایک جنرل تھے, جنرل پومپے, اس نے اسرائیل پر قبضے کا اعلان کر دیا, ڈکلیئر کر دیا کہ اسرائیل اب ہمارے زیر تسلط ہے. پھر چونکہ یہ ان کے ساتھ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ترہو یا مطلب ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یہودیوں کے ساتھ. اب اس بنا پر یہودی رومیوں سے بہت نفرت کرتے. رومی نہیں کرتے تھے, رومی ان سے نفرت نہیں کرتے تھے, بلکہ یہودی کیا کرتے تھے, ان سے نفرت کرتے تھے. اب کوئی بتائے کہ رومی کیوں نہیں نفرت کرتے تھے؟ ہاں جی, ہاں اچھا, نمبر 1 ایک تو ان کے مذہب کی وجہ سے, کیونکہ ان کے اندر کسی نہ کسی طرح سے یہ خوف موجود تھا کہ یہ جو مذہب ہے یہ مذہبی اعتبار سے بڑے سٹرونگ لوگ ہیں, اور انہیں ہر وقت خدشہ رہتا تھا کہ اگر ہماری حکومت گری تو کون گرائے گا؟ یہودی لوگ گرائیں گے. اور کسی سے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا, یہودیوں سے خطرہ تھا. اور یہ خطرہ یا اندیشہ یا کہہ لیں کہ ان کا جو وہم تھا, گمان تھا, اب حقیقت کی شکل اختیار کرتا گیا. آگے چل کے میں کچھ جو یہودی گروہ ہیں, فرقے میں نہیں کہتا, گروہ, ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے. زیلوتیسی ایک گروہ کے بارے میں. یہ گروہ جو تھا, زیلوتیسی گروہ جو تھا, یہ رومی حکومت کے اگینسٹ آزادی کے لیے بنایا گیا تھا. جیسے اسے کہا جاتا تھا کہ یہ محب وطن جو یہودی ہیں یہ ان کا گروہ ہے. برابا جو تھا وہ اس کا ممبر تھا, زیلوتیسی کا. خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد شمعون زیلوتیسی جسے کہا جاتا ہے, وہ بھی اس کا ممبر تھا یا اس کا حصہ تھا. سو سمجھ لیں کہ رومی گورنمنٹ اور زیلوتیسی جو گروہ ہے یہ آپس میں ہمیشہ گتھم گتھا رہتے تھے, آمنے سامنے رہتے تھے. رومی انہیں پکڑتے رہتے اور وہ رومیوں کو قتل کرتے رہتے تھے. یہ قتل و غارت, یہ اپنی دفاع کی جنگ یا اپنی آزادی, لبرٹی کی جنگ جو ہے, فریڈم کی جنگ جو ہے, یہ کافی عرصے سے چل رہی تھی. اور خداوند یسوع مسیح کے دور میں بھی یہ چل رہی تھی. اس لیے برابا کو انہوں نے قید خانے میں ڈالا ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ برابا کو جب لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمارے لیے اس کو نہیں, یعنی خداوند یسوع مسیح کو نہیں بلکہ اس کو مصلوب کر دے, اور ہمارے لیے کس کو چھوڑ دے؟ برابا کو چھوڑ دے. برابا کو اس لیے چھوڑ دے کیونکہ وہ ہمارے لیے تو جنگ کر رہا تھا, اور اس نے کیا جنگ کرنی ہے, یہ تو خود بڑا معصوم سا ہے, اس کو تو انہوں نے پکڑ لیا ہے, اس نے ہمارے لیے کیا جنگ کرنی ہے, تو اس کو کیا کر دے, مصلوب کر دے, اور اس زیلوتیسی کو یعنی برابا کو ہمارے لیے چھوڑ دے. سو یہ گروہ جو ہے یہ دراصل آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا. یہ کہتے یہ تھے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن رومی چونکہ ان سے خائف تھے اور ڈرتے بھی تھے, اور کسی نہ کسی حد تک وہ ان کا احترام بھی کرتے تھے ان کے مذہب کے اعتبار سے, اور ان کے ریلیجس جو مختلف طرح کے ریچولز تھے ان کی وجہ سے. سو رومی دور جو ہے یہ بڑا اہم دور گزرا ہے. اس میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں, جیسے ان کے دور میں پیکس رومانا, یہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں پیکس رومانا کے تعلق سے. سو پیکس رومانا جو ہے یہ ایک پیس کو قائم کرنے کے لیے, امن کو قائم کرنے کے لیے
जो जितनी भी रियासतें थीं उनके माबैन एक एग्रीमेंट था ताकि जो तमाम लोग हैं वो बड़े अमन और सलामती से रह सकें। सो रूमी दौर में चूंकि पैक्स रोमाना की वजह से बड़ा अमन था, सलामती थी, रियासतें लड़ती नहीं थीं और काफी जंगो जदल पर इस वक्त काबू पाया जा चुका था। फिर इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे रोड्स तामीर किए, बहुत सारी सड़कें बनाई और इसी तरह से जो आपको इमाल की किताब में बहरी जहाज़ों का तज़किरा मिलता है और इसी तरह से मुक़द्दस पौलुस के सफ़र का जिक्र मिलता है, तो दरअसल इसमें रूमी हुकूमत का बड़ा किरदार था कि इन्होंने लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आमदोरफ्त के लिए बहुत ज़्यादा काम किया ताकि जो तिजारत है, ताकि जो लोगों का आपस में कारोबार बिजनेस करना है ये आसान हो सके। सो इस दौर में बहुत सारे तरक्की के काम हुए। इसी तौर से जो टैक्स लेने का निज़ाम है वो भी रूमी हुकूमत ने दुनिया को दिया। आज भी पूरी दुनिया में जो टैक्स की कलेक्शन का इंतजाम या निज़ाम है ये रूमी गवर्नमेंट का दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने इसको राइज किया ताकि इसके वसीले से जिज़िया इकट्ठा किया जाए, टैक्स इकट्ठा किया जाए, उससे हुकूमत जो है वो स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके। और इस बात के भी यहूदी बड़े खिलाफ थे और रूमी हुकूमत की बड़ी एक अजीब तरह की स्ट्रेटजी थी कि वो जिस जगह से भी टैक्स इकट्ठा करते थे वो अपने लोगों को वहां नहीं बिठाते थे, वो उसी कौम के लोगों को वहां से लेते थे और उनको वहां बिठाते थे ताकि लोगों के अंदर किसी भी तरह से नफरत का जज्बा पैदा ना हो, कि वो अपने लोगों को अपना समझ के तो उसे टैक्स अच्छे तरीके से देते रहें। लेकिन यहूदियों के हाथ थोड़ा इसका उल्ट मतलब लिया गया। यहूदी लोगों ने जो महसूल लेने वाले थे उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया कि ये कौम के क्या हैं, गद्दार हैं। गद्दार किस लिए हैं? क्योंकि ये कौम का पैसा लेकर, टैक्स लेकर किनको देते हैं? रूमियों को देते हैं। सो इस एतबार से जितने भी महसूल लेने वाले थे उनको लोग गद्दार कहा करते थे, बल्कि उन्हें गुनहगार समझा करते थे कि ये गुनहगार हैं। अगर किसी को वो गुनहगार कहना चाहते तो उसे महसूल लेने वाला भी कह देते थे। मतलब एक ही मतलब है, महसूल लेने वाला है तो समझो क्या है वो गुनहगार। वो है या नहीं है इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन यहूदी समझते हैं कि ये क्या है, गुनहगार है। सो इस एतबार से यहूदी जो हैं ये महसूल लेने वालों से भी बड़ी नफरत करते थे, चूंकि नफरत पीछे रूमियों के साथ थी और अब इनके जो आगे कारिंदे हैं, जो ये लेन देन करते हैं, उनके साथ भी ये नफरत किया करते थे। महसूल लेने वालों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हुआ करती थी। एक वो थे जो कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे बराह रास्त रूमियों से, और दूसरे वो थे जो मजदूर तबका थे। और जो आपको ज़कई नजर आता है ये मजदूर नहीं था बल्कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर था। मुक़द्दस मत्ती जो हैं ये भी महसूल लेने, ये भी मजदूर नहीं थे बल्कि कॉन्ट्रैक्टर थे जो बराह रास्त रूमी हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट, और इसलिए ये बड़े मालदार थे और इस एतबार से इनके पास जैसे ज़कई के माल का तज़किरा हमें मिल जाता है। सो इस एतबार से लोग इनको टैक्स देने से भी गुरेज़ां थे। बहरहाल जो रूमी शहरियत है इन्होंने ऐसे ही बना रखी थी जैसे आज आपको बड़े बड़े जो मुमालिक हैं, जैसे अमेरिका की सिटीजनशिप है, पाकिस्तान की भी वैसे बड़ी मुश्किल है। पता है आपको, पाकिस्तान किसी को सिटीजनशिप नहीं देता है। पता है किसी को? आप हैरान होते होंगे, कोई भी नहीं देता। तो उसमें पाकिस्तान भी ऐसा ही है, पाकिस्तान किसी को भी अपनी शहरियत नहीं देता। अब ये जो रूमी हुकूमत थी इसमें जिसके पास, जैसे आजकल किसी के पास अमेरिकन पासपोर्ट हो या उनका शहरी होने का, सिटीजन होने का कार्ड हो, या यूके या दीगर बड़े जो मुमालिक हैं, तो लोग फूले नहीं समाते हैं। तो जैसे वो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है उनका, ऐसे ही रूमी गवर्नमेंट का प्रोसेस है। सिटीजनशिप लेने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा पैसे पे करना पड़ते, फिर रूमी हुकूमत के किसी ना किसी अफसर को बराह रास्त
इन्वॉल्व होना पड़ता, तब जाकर रूमी शहरियत मिलती थी, या रूमी शहरियत मिलती थी पैदाइशी जो रूमी लोग हों, उनके एरिया में उनकी पैदाइश हुई हो, उनके इलाके में उनकी पैदाइश। सो बहुत सारे लोगों को असर और रसूख की वजह से भी रूमी शहरियत जो थी वो मिल जाया करती थी। इसके फायदे काफी थे। मिसाल के तौर पे इन पे गद्दारी का मुकदमा नहीं चलता था, फिर टैक्स से काफी छूट थी, और दीगर जो केसेस हैं अदालतों में इन्हें छूट मिल जाती थी रूमी शहरी होने की वजह से। और भी दीगर सहूलियात जैसे एजुकेशन में, जैसे स्पोर्ट्स में, और दीगर जो स्टेट से कनेक्टेड चीजें थी उनमें जो रूमी सिटीजन शिप रखते थे उनको काफी ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता था। और इस लिहाज से इनके दौर में मजहब का प्रचार करना आसान था, मजहब को प्रीच करना आसान था, लेकिन मजहब के नाम पर किसी भी तरह से अमन आमा को खराब करना रूमी हुकूमत के समझे कवानीन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था। इसलिए आपको याद है न्यू टेस्टामेंट में रसूलों के एमाल में जब मुकद्दस पौलुस और सिलास जा रहे हैं और उन पर ये इल्जाम लगाया गया कि ये क्या करते हैं, मजहब का प्रचार करते हैं और हमारे इलाके में खलबली डालते हैं। हमारे इलाके में क्या करते हैं? खलबली डालते हैं। खलबली से मुराद ये थी कि अमन आमा को क्या करते हैं, क्योंकि प्रचार करना, प्रीच करना तो गलत नहीं था, इसका इल्जाम तो उन्होंने ना लगाया, लेकिन उन्होंने खलबली का इल्जाम लगाया कि ये अमन आमा को खराब करते हैं। सो इस एतबार से प्रीच करना इजी था, लेकिन अमन को खराब करना जो है ये खासा समझे कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन या उनके लॉज के अगेंस्ट था। अब हमारे पास चूंकि 4 लोग हैं कलाम सुनाने वाले, सो मैं चाहता हूं हम इसको यहीं पे क्लोज करेंगे